ایک قدرتی کھیتی کا تصور جو ہم نیچر کے سے ہم بالکل ہٹ گئے ہیں، ہم نے اس کی نیچر کی طرف جانا ہے۔ نیچر کیا ہے؟ قدرت نے انسان کی پیدائش سے پہلے جنگل، یہ چیزیں، یہ سارا کچھ اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے ارینجمنٹ کرنے میں، ہم کھادیں ڈالنے میں، ہم زہر ڈالنے میں۔ قدرت کے قانونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس قدرتی کھیتی میں کہ قدرت نے کیا کیا۔ قدرت نے جب جنگل آئے تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے، وہ ایک جگہ سے اناج اٹھاتے کھاتے، وہ دوسری جگہ جاتے، وہاں اپنی رسٹا ڈالتے، اس سے وہ اپنا بیج پھلتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں کے کوٹھوں کے اوپر یا آپ کے گھروں کی چھتوں پہ آپ کے پرندوں کی جو ویسٹ ہے اس کی وجہ سے وہاں پودا اگا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک قدرت نے قانون بنایا جہاں نہ کوئی وائی تھی، نہ کوئی ٹریکٹر تھا، نہ کچھ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچہ دیا تو اس کے ماں کے دودھ نہیں آیا، خواہ بکری ہے، خواہ بھیڑ ہے، خواہ گائے ہے، وہ ہے۔ اللہ نے اس کی پیدائش سے پہلے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کو اس کی جو ہے اس کی بڑھوتری کے لیے سارا انتظام سیٹ اپ کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ ہم فرٹیلائزر بنا کے، ہم کھادیں ڈال کے، ہم زہر کھلا کے ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ 1960 سے تقریباً پہلے پاکستان میں کوئی کھاد کا تصور نہیں تھا، نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں۔ اچھا، جب کھاد کا تصور آیا تو لوگوں نے اپنے کھاد کی طرف راغب ہوئے کہ یہ وہ ہوئے۔ جیسے جیسے یہ باہر کی کمپنیاں، باہر کے ملک اپنے ملک پہ حاوی ہوتے گئے، اس میں یہ ہوا کہ جیسے جیسے ان کے بیج سیڈ ہوئے تو ہمارا جو ذمہ دار تھا وہ سست اور کاہلی کا شکار ہوتا رہا کہ وہ بیج بہت اچھا ہے، وہ کھاد بہت اچھی ہے، اس سے یہ پروڈکشن۔ اس نے اس چیز کو قطع نظر دیکھا کہ اس نے اپنی آسانیاں دیکھیں کہ یہ جو کھاد ڈالتے ہیں، جو ہم گوبر کی کھاد ڈالتے تھے وہ ڈالتے تھے، اس سے ہماری جان چھوٹی اور یہ ہماری پیداوار زیادہ ہوئی۔ حالانکہ پیداوار زیادہ نہیں ہوئی، پیداوار کم ہوئی۔ قدرت کے قانون ہیں کہ 98% کوئی بھی پودا 98% خوراک دھوپ، ہوا اور نمی سے لیتا ہے۔ جب 98% خوراک وہاں سے لیتا ہے تو 2% جو ہے وہ زمین سے لیتا ہے۔ وہ زمین سے جو لیتا ہے وہ اس کے دوست کیڑے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے، ہم نے اس سائیکل کو ڈسٹرب کیا ہے۔ سائیکل کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جب جنگل تھا تو اس میں یہ تھا کہ جنگلوں میں مطلب کہ ہر قسم کا جانور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کو پیدا کیا کہ اس کو کھاؤ، کیونکہ اگر وہ جنگل میں ایک دوسرے جو جانور ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ کوئی جنگل بچے گا نہیں۔ جب وہ جنگل نہیں بچے گا تو شیر کی پیدائش ہوئی، شیر نے جنگل کھایا، جنگل کے جانور کھائے، اور اللہ نے شیر کو نیند دی۔ نیند کیوں دی؟ کہ شیر کھائے، ماس کھائے اور سوئے لمبا۔ جب وہ لمبا سوئے گا کہ وہ سارا جاگتا رہے گا تو سب کو کھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے اس کی نیند میں اضافہ کیا۔ اسی طرح وہ کھاتی ہے تازہ ماس، گوشت، اور اس کے مطابق ایل ہے، وہ کھاتی ہے مرا ہوا گوشت۔ ایک کو تازہ وہ جب مرا ہوا کھاتی ہے اس سے اس کی پالوشن جو ہے نا، وہ پالوشن ختم ہوتی ہے۔ آپ کے جانور اگر وہ باہر مرتا ہے تو وہ اللہ نے مختلف چیزوں کی ہم نے کسی ایکو سسٹم کو جب ڈسٹرب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا ذہن لڑاتے ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم قدرت کی کھیتی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو ہم اب جتنے وہ ٹریڈر یا جو کچھ بھی مافیا، یہ باہر کی کمپنیوں نے انہیں برباد کیا۔ کیسے کیا؟ کبھی کھاد کی شکل میں، کبھی بیج کی شکل میں،
वो का जेनेटिक बीज दिखा दिए, वो ऐसे ही है जैसे आप एक सादा मुर्गी का गोश्त खाते हैं और एक ब्रॉयलर खाते हैं, ये इनके जीन्स में वो करके, ताकि उन्हें भूख प्यास लगे वो खाएं ज़्यादा, जैसे ज़्यादा खाएंगे और उन्हें खादों की ज़रूरत होगी, जबकि खादों की ज़रूरत किसी चीज़ को नहीं है। हमें इस चीज़ को देखना है कि जो हम जहर खा रहे हैं, इंडिया वाले इस चीज़ पे बहुत कॉन्शियस हैं। मैं 62 साल की उम्र में आपके लिए आपका स्टूडेंट बना हुआ हूँ कि मैं इल्म सीखता हूँ, तो वो इंडिया वाले क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं? इंडिया में कैंसर इस बुरी तरह फैल रहा है, कोरोना ने वो रगड़ा चढ़ाया, वो क्या, जो सारा का खादों के असरात या स्प्रेओं के असरात, जो चीज़ जड़ी बूटियों को रोक सकते हैं वो हमारी नस्लें क्यों नहीं रोकेंगे? जब पौधे पे हम स्प्रे करते हैं तो हमारे भांजपन का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों बच्चियों में, हमारी औलादें कम हो रही हैं, बगैर किसी किए हमारी मनसूबाबंदी ऑटोमेटिक हो रही है, और आने वाले वक्त में खौफ है कि आने वाले बच्चे इस चीज़ से तंग होंगे कि आने वाले वक्त अगर इस चीज़ को ना संभाला। ये एक सदका जारिया है कि हमने शुद्ध खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पकाना है। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैंने 4 साल इसी कॉलेज में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और इसी कॉलेज से मैंने पढ़ा है। और ये कॉलेज को कौशल ब्लॉक वाले साहब ने वसीयत की, उनके कहने पे बना। मैंने कॉलेज ब्लॉक को ऑफ़र किया, माशाल्लाह डॉक्टर शहबाज साहब ने इन्हें अप्रिशिएट किया, हैदर साहब ने अप्रिशिएट किया, मुझे उधर ले गए अपना प्रिंसिपल मुमताज़ साहब। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे विज़न को पसंद किया और उसे ना हमने फैलाने का किया। ये जो सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की खुशी है कि ये आप जो लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे साथी कराम हैं, मेरे ये बेटे बेटियाँ, जो ये आपको पाकिस्तान का पहला लीडर जो है ना इंशाल्लाह मैं हूँगा, और आप मेरे स्टूडेंट हैं। जो भी मेरे ये कॉलेज को मैंने ऑफ़र किया था, इस कॉलेज का हक़ है काशिफ ब्लॉक वालों का कि मेरे वालिद साहब ने बनाया, मेरे पास इल्म है तो मैं आप में बांट सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो मेरा इल्म है मैंने आपको बांटने का लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा उठाया। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब को लिया। ये जो हमारा जो कॉलेज है इसे हमने पीक पे लेके जाना है। खा उसका किसी का तल्लक है नहीं है, खाता हर कोई है, हर घर के ऊपर उसके पास छत है। मैं आपको बेटियां हैं या बेटे हैं, मैंने आपको एक ऊपर की तरफ उठाना है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कॉलेज के ज़माने में, मुझे शायर का नाम शायद ना आता कुछ को, मैं इमोशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन ये बोलना मुझे आप लोगों ने सिखाया कि मेरा दिल है कि मैं आप में बांटूँ बांटूँ बांटूँ, मुल्क संवारूँ। अच्छा, इसमें ये वो शेर याद है, तबीयत से फरमाया कि शेर तर नहीं होता, जो आबे चाक का कतरा है वो गौहर नहीं होता। गौहर खुले समुद्रों में पैदा होते हैं। आप खुले जहन से रखेंगे, हम पूरे पाकिस्तान को साफ़ करेंगे। हमारे मिशन में क्या है? खादों से जान छुड़ानी नंबर 1, नंबर 2 मुल्क का पानी बचाना, नंबर 3 इससे अपनी जो हॉस्पिटलों से जान छुड़ानी। हॉस्पिटलों से जान तब छूटेगी जब हम शुद्ध खाएंगे, अच्छा पकाएंगे। हम इस चीज़ पे जोर देते हैं, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे पढ़ाया, मैंने इसे गाड़ी दी, ये करो वो करो फलाना करो। मेरे इस बेटे को भी यही तलकीन है कि उन चीज़ों पे एसेसरी से ज़्यादा आप अपनी खुराकों पे तवज्जो दें, खुराक पे तवज्जो दें। जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो वो आपके लिए सेहतमंद होगा। इसमें खुदा आपका सबका हामी और नासर हो कि ये जो कुदरती खेती है इसमें हमारा सफ़र जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है। कुदरत ने 2 कीड़े पैदा किए, हमने जहरें डाल के 2 कीड़े ख़त्म किए। जो ट्रैक्टर है, जब कोई भी कोई चीज़ है तो उसकी जैसे जैसे खाद डालते हैं वैसे वैसे हमारी ज़मीन सख्त से सख्त होती जा रही है। ये हमारे शहर में मेरे बहुत सारे बेटे यहाँ बैठे हैं जो देहात से तल्लक रखते हैं। जब ये शुरू में आते थे तो इन्हें पता होगा, इनकी तो होश ही नहीं है, इन्होंने तो होशें जी आप सब लोगों ने खादों में खोली हैं। मैं एक ऐसा बचा हूँ, मेरी 62 साल माशाल्लाह उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर का हमेशा घर का दूध पिया, घर की भैंस भी। अब बदकिस्मती देखें,
बदकिस्मती ये है कि जो हम जानवरों को दूध भी ले रहे हैं ना, वो भी हमारा खालिस नहीं है, वो भी खादों वाला ही दूध है। तो किसी जानवर को तो अच्छी चीज़, साफ़ चीज़ मिल ही नहीं रही। और इसमें मैंने मतलब कि जो मैं सीखा वो सीखा, चूँकि मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, मैं गुज़श्ता 25 साल में इसी में धक्के खा रहा था जब खादों में था। जब से मैंने ये काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मैं आप नहीं मुझे दुआएं देंगी, आपकी आंदरें दुआएं देंगी, मैं आपको गलत चीज़ नहीं खिला रहा। मेरा मिशन ये है और इंशाल्लाह इस मिशन पे हम अपने काम को जारी रखेंगे। और इसमें जो सबसे चीज़ आसान जो मैंने देखी है, कोई चीज़ होते हैं। नेशनल हीरो कौन होता है? नेशनल हीरो वो होता है जो पूरी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लिए काम करे। मिसाल के तौर पे जिसने पोलियो ईजाद किया, पोलियो के कतरे, वो मतलब पूरे पाकिस्तान का नहीं है, वो दुनिया का जो भी है शख्स, अल्लाह ताला उसे जज़ा दे, उसने एक वैक्सीनेशन निकाली। कि जैसे हमने ये, अगर कोई भी हमारा कोई अच्छा काम करता है तो उसे हमें उसके काम को मानना पड़ेगा और उसके हमें ये नहीं करना अपने में, हमें इसे बांटना पड़ेगा। मैंने अपनी फीसें 3 रखी हुई हैं अपने काम की ना, जो भी आता है तो मैंने उससे फीस नंबर 1 नमाज कायम करें। जब हम नमाज कायम करते हैं, हम दिल पे यकीन रखते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और ये इस यकीन से काम करते हैं तो अल्लाह बरकत डालता है। दूसरी फ़ीस, अल्लाह मियाँ आपके रिज़्क़ में बरकत डाले तो शुक्र अदा करो। जब आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह मियाँ का शेर बीच में आ गया। तीसरी मेरी फ़ीस ये है कि आपको फ़ायदा पहुँचता तो मेरे दूसरे भाइयों में बांटे मेरा इल्म। ये मेरी फ़ीसें हैं। इंशाल्लाह आज मतलब कि मैं रमज़ान शरीफ का इंतज़ार कर रहा था, रमज़ान शरीफ के इंतज़ार की वजह से मैं चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। वालिद साहब की अल्लाह जन्नत नसीब कर, मेजर मोहम्मद रफ़ीक सफदर साहब की बहुत सारी खिदमात हैं मेरे वालिद साहब की। उन्हीं ने यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए, उन्होंने बांटने को हमेशा तरजीह थी। उन्हें मामून नास के लिए जो भी किया पसंद किया। हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब मेरे ताया हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने कहना ताया जी तुसी ये की कर दे, वो कहता पुत्र तू एक कोई नहीं खाएगा तो उनकी आंदर तो दुआवां देनिए, चोरी करके खाएगा खान दो, उनकी आंदर दुआवां देनिए। हम उस घर के बच्चे हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि जो नुकसान उठाना है मैं उठाऊँगा, जो काम अच्छा होगा वो मेरे मुल्क का होगा। ये हमारी सोच है। जब हम पानी, ये हम अपना पानी बचाएंगे, पानी को कैसे बचाना है, किसी भी चीज़ को, जो पानी है वो दुश्मन है फसल का और नमी जो है वो शरबत है। हम क्यों पानी ज़ाया कर रहे हैं? अच्छा, हमने पानी हार्वेस्ट करना है। कैसे हार्वेस्ट करना है? जब हम ज़मीन में दोस्त कीड़े पैदा करेंगे। जब दोस्त कीड़े में सबसे बेहतरीन दोस्त कीड़ा उसमें गडोया है, ज़मीन में जो गडोया है वो अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने खाना है, खा के तो अपनी जो वेस्ट है वो ऊपर डालनी है। वो 12 फुट नीचे तक जाता है। ज़मीन में हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। ये पौधों को, जंगल के पौधे देखें आप, कहीं उसमें देखें, कहीं सड़क किनारे देखें, तो उसको कौन पानी लगाता है? वो कुदरत को समझें, वो दोस्त कीड़े ही हैं वो उसे। और जैसे ही इसको पानी की ज़रूरत है, पानी के साथ हवा की भी ज़रूरत है। जब जैसे आपके छेद होते हैं उसमें ऑक्सीजन भी घुसती है। अच्छा, तो ये जब ये दोस्त कीड़े होंगे तो वो, ये तो हमने सब में मार दिए, तो फिर हम कहते हैं बंजर जो हमारी ज़मीनें, हमने अपनी ज़मीनों को बाँझ कर दिया है। बाँझ करने से, हमने ज़मीनें बर्बाद करने से किस तरह बाँझ कर दिया कि हमने जहरें डालते हैं। आप एक चम्मच यूरिया खा के देखें, खा सकते हैं? नहीं खा सकते, मरेगा। आप